Hello and welcome dear students. I Dr. Nita Singh Thakur welcome you to this new video of OC. As per government's rule and suggestions in this pandemic situation, we don't have any other option to teach. So let us positively accept this concept of online teaching. Okay, so in today's video, I will be continuing with what is management. But before we start the chapter, let discuss something about our textbook. So the title of our textbook is Organization of Commerce and Management. Subject code is our 046. Okay, remember that and note it down. 046 is our subject code and it is required in board exams. So I request you to note it down in your rough notebook or in your textbook. Okay, so let us continue. Here I have made this index from textbook. So total 12 chapters are given in your textbook. First chapter is nature and significance of management. Second one is principle of management. Third is planning. Fourth is organizing. Fifth is staffing. Sixth is directing. Seventh is controlling. Eighth is financial management. Ninth is financial market. 10th is marketing management, 11th is consumer protection, and 12th is business environment. In today's PPT and video, we will discuss about nature and significance of management. Okay. Okay, you can see the title of our first chapter, nature and significance of management. Uh, any economic activity undertaken with motive of earning profit is known as business, and success of any business depends upon its मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैनेजमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट सिंस एंशियंट टाइम, ये पुराने समय से चला आ रहा है. ओके, इन द प्रिमेटिव एरा ऑफ स्टोन एज ह्यूमन बीइंग्स वर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग, फिशिंग, etc. Planning, supervision, coordination, and guidance were used by them for accomplishment of their work. So this process means management. Okay, so let us conduct a study on its important features. What will you learn in this chapter? तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि इसका टाइटल है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. जिसे अगर हिंदी में हम बोलें तो मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए. तो ये मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, इसके एरियाज क्या क्या है, तो ये आपको समझाने के लिए फर्स्ट चैप्टर दिया गया है. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Okay, so in this first chapter we will learn about management, meaning of management, nature of management, importance of management, and management as a science, arts and profession. Management क्या है, साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट. गोल्स है, स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग है, बिजनेस है, इज मैनेजमेंट इज अ प्लान, कंपटीशन, परफॉर्मेंस और एक्सेट्रा. ओके, so in detail, according to F.W. Taylor, management is an art of knowing what is to be done and seeing that if it is done in the best possible manner. And according to Henry Fayol, management is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control activities of others. But if अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through others. Okay, and management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected goals. जिसमें मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी लोग मिलके, कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी मिलके जो हमने एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, एक उद्देश्य है हमारा, वो सभी मिलके साथ में उस गोल को अचीव करने में जो हमारी मदद करे वो क्या है, मैनेजमेंट. नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट आर द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट.
तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. Management is a continuous process. Management is a multi-dimensional process. Management is a group activity. Management is a dynamic function and management is a intangible force. मतलब मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, जैसे हर जगह देखा जा सकता है. ऐसे आप छोटे लेवल पे देखो या बड़े लेवल पे देखो या इंडिया में देखो या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखो, आपको मैनेजमेंट हर जगह देखने को मिलेगा. इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस. ओके. नंबर 2 इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. मैनेजमेंट हम कब करते हैं? जब हमारे पास कोई एक उद्देश्य होता है. मैनेजमेंट बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स में आप देखें तो एक टारगेट, एक गोल डिसाइड किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि हमें इसको एक पूरा करना है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप ऐसा नहीं कि आज हमने सही से काम कर लिया और अगले बार आज कर लिया बोलेंगे कल नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता है. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है. ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है, बहुत सारे लोग मिलके मैनेजमेंट करते हैं. डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है. ओके ओके. सो व्हाई मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट? मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज I have brought some points you can see on the screen. Management is important because it is necessary in every field. Management is required in all the fields. Okay. Number 2, optimum utilization of resources. Management avoids unnecessary wastages and sees that these resources are used in maximum possible way. Number 3 is accomplishment of objective. उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके. नंबर 4, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. अगर हम कहें तो सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट. Efficient management can even convert a loss making unit into a profit making a unit. A small scale industry can be converted into a large scale industry. एक छोटी सी कंपनी को एक अच्छे मैनेजमेंट की बदौलत हम एक लार्ज स्केल कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को. All the credit of success of a business unit should be given to the management. Okay. Next point is increase in job opportunities. If the management is efficient, the firm converts into a company which will create more employment and opportunities. अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोडक्शन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट. इफ मैनेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग. Okay, so competent and proficient managers with their insight and proficiency make the maximum use of available resources, and this leads into cost benefits. As a result, the firm enjoys profit. Okay, our next point is social benefit. Social benefit कैसे होता है मैनेजमेंट से? तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस किससे बनता है? सोसाइटी से बनता है. ओके. एंड बिजनेस वर्क्स फॉर सोसाइटी. और बिजनेस किसके लिए काम करता है? सोसाइटी के लिए. नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट आउटसाइड दी सोसाइटी. कोई भी बिजनेस सोसाइटी के बाहर जाके काम नहीं कर सकता. ओके. Business units provides goods and services to the society at a reasonable price. Thus, business is working for the welfare of the society. इसलिए business की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोगों तक या सोसाइटी तक अच्छे से अच्छी चीज़ों को या फायदा कराए लोगों को, ऐसा काम करे. नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नेशनल मोटिव. व्हाट इज नेशनल मोटिव? तो एक मोटिव का मतलब होता है कि एक टारगेट क्या रखा है बिजनेस का. तो फॉर इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. यहाँ पे जब नेशनल की हम बात करते हैं तो कंट्री की बात करते हैं. तो बिजनेस क्या करता है? तो बिजनेस
For economic, social, and national development of a country, all the untapped resources are to be utilized, and management is essential in making maximum utilization of all the untapped resources. So nowadays, management is a very important element for the business. From the above discussion, it is clear that management is an important element of business. A good management would decide the success or failure of any business. Okay. Okay, after discussing the importance of management, here we can see that management as a science, art, and profession. Management विज्ञान है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन योर एग्जाम। ये 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क में भी आता है, 3 मार्क में भी आता है और 5 मार्क में भी आता है। तो अगर आप पेंसिल है आपके पास या पेन है तो आप इसे एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करके रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है। अगर मैं कहूँ कि तीनों में से मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। अगर हम देखें कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द मैनेजमेंट साइंस अप्रोचेस मेंटेन्स दैट मैनेजर्स कैन फॉलो अ फेयरली सिस्टमैटिक प्रोसेसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके, इसमें आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, क्लासीफाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, देन चूजिंग और रिकमेंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसीलिए हम इसे क्या मान सकते हैं, साइंस। नाउ why management is art? Because in management personal skills are required, practical knowledge is required, and management is a result oriented activity. So concrete result oriented approach, development through practice, and creative power is required. Okay, why management as a profession? तो management profession की तरह क्यों है? क्योंकि इसमें नॉलेज का एग्जिस्टेंस है, एक्वेशन ऑफ नॉलेज है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एथिकल कोड्स है एंड सर्विस मोटिव है। ओके, now we'll talk about levels of management. So there are 3 levels of management: top level management, middle level management, and lower level management. Here you can see the pyramid of मैनेजमेंट। सबसे टॉप पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सेंटर में मिडल लेवल मैनेजमेंट है और सबसे लोअर में लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ओके, अब ये 3 मैनेजमेंट में कौन कौन आता है और ये कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव कमिटीज आर included, and in the middle level of management department managers, production managers, sales, personal and finance, etc. Lower level, if we talk about lower level, इसे हम ऑपरेटिंग लेवल के नाम से भी जानते हैं और सुपरवाइजर्स लेवल के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें आ जाते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स एंड एटसेट्रा। ओके, ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क में और 3 मार्क में अक्सर करके पूछा जाता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट को ऑफिसर्स लेवल के नाम से भी जानते हैं। ओके, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, मतलब मैनेजमेंट कैसे काम करता है। जैसे आप देख रहे हो, हमने वो लास्ट ट्राइंगल देखा जिसमें सबसे ऊपर जो है टॉप लेवल वो ऑर्डर दे रहा है, मिडल लेवल है जो उस ऑर्डर को एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करने के बाद वो किसे दे रहा है, लोअर लेवल को। ओके, लोअर लेवल को जो टॉप ऑर्डर से ऑर्डर मिला है उसे फॉलो करना है, उस तक पहुंचा कौन रहा है, उसे मिडल लेवल। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है। So if we talk about functions, there are 2 types of functions of management. First one is primary function of management and the others are secondary functions of management. Secondary functions of management we will discuss in
next chapter. Okay, so if it अगर हम primary functions की बात करें तो there are five functions. First one is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and fifth is controlling. See, the art of getting work done from others is called management. We all know that. The management has various functions to be performed. These functions are classified by various experts. And if we talk about planning, तो प्लानिंग के बारे में एक बात बोली जाती है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट एंड we can say that planning helps in selecting the best alternative from the available alternatives. And if we talk about organizing, so it is a structure of assigning authority and responsibility. This allocation is done among the employees who are working for a common good. Objectives, policies, methods, programs, etc. are decided and done by the employees. Okay, and the third one is staffing. What is staffing? तो एक लाइन है इस चैप्टर में माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड ऑल अदर थिंग्स फॉर यू अंडरलाइन दिस लाइन और इस लाइन को आप नोट कर लेना आई एम रिपीटिंग माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड ऑल अदर थिंग्स फॉर यू मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ओके ऐसा क्यों बोला जाता है तो इट इंक्लूड्स सिलेक्शन प्रमोशन ट्रांसफर ट्रेनिंग एक्सेट्रा वर्कर्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स वर्कर्स एंड दीज वर्कर्स कैन बी बूस्टेड थ्रू स्टाफिंग ओके नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग डायरेक्शन मीन्स टू गाइड दिशा बताना या रास्ता दिखाना so direction means to guide and to supervise the employees for the accomplishment of objectives. In spite of all this, efforts become useless if the superior fail to provide proper direction to the employees or workers. Other management functions are worthless without directions. बाकी सारे management के functions बेकार हो जाएंगे जब तक direction proper होगा नहीं. Now planning, organizing, staffing and directing. ये सब फुलफिल हो सकेंगे अच्छे से हम इन्हें कर पाएंगे तो एक लास्ट में जो फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट and the function of controlling is to see whether all the business activities are done or not. So controlling is a positive concept. It controlling it है doesn't mean कि वो negative ही है तो sometimes controlling is a corrective activity and because the function of controlling is not to restrict the activities but to direct them in the right direction and if these activities are not done as per planning आप सबको पता है कि अगर एक्टिविटीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सो यहाँ हमने डिटेल में देख लिया है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है सो टोटल 5 फंक्शंस आर देयर फर्स्ट वन इज प्लानिंग सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग थर्ड इज स्टाफिंग फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग ओके ये क्वेश्चंस हमारे मन में जब आते हैं कि प्लानिंग क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजिंग क्यों चाहिए कंट्रोलिंग क्यों चाहिए तो आप इसे रीड कर सकते हैं नाउ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट so if we talk about functional areas of management to total 4 areas we can see on the screen first is marketing management second is human resource management third is financial management and fourth is production management मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम बात करें वी टॉक अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट हिंदी में जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं वैसे अगर हम देखें तो मार्केट प्लस थिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है मार्केट तक बिजनेस को पहुंचाने के लिए जिस मैनेजमेंट की हमें जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट ओके What is marketing management? So, marketing management is the art and science of choosing targets
markets, and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Second one is human resource management. आप first word देखिए इसका human, it is directly related to means human resource management includes all activities used to attract and retrain employees and to ensure they perform at high level in meeting organizational goals. मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स एक एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ओके, इस डिपार्टमेंट में या इस मैनेजमेंट में व्हाट एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, तो फर्स्ट इज स्टाफिंग, सेकंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, third is performance appraisal, fourth is compensation, and fifth is labor relation. Okay, now next, in human resource management, recruiting, performance, training, research, skill, employees potential, leadership, ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। Now next is financial management. What is financial management? So, financial management means to plan and to control the finance of the company. It is done to achieve the objectives of the company. Financial management is concerned with raising financial resources and their effective utilization towards achieving the organizational goals. सिंपल एंड शॉर्ट में हम समझे तो आप सबने एक कहावत सुनी है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत होती है। अब हमारे पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर देंगे। उस पैसे के एक मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है कि कहाँ कब कितना पैसा किस पर लगाना है। तो ये जो समझ आती है ये हमें कौन देता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, now if we talk about production management, so what is production management? Production management है, production management deals with decision making related to production processes so that the resulting goods or services are produced according to specifications in the amount and by the schedule demanded and out of minimum cost। मतलब प्रोडक्शन का जो वर्ड है वो प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना। ओके, अब कोई भी कंपनी है वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती या कुछ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर हमें क्या सिखाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी at the right time and right manufacturing cost। मतलब right quality, right quantity, right time and right manufacturing cost। ये सब हमें कौन सिखा रहा है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाउ कैन आई, मैं कैसे किस चीज़ को क्या करूँ? हाउ कैन आई फाइंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? हाउ कैन आई कीप अप विद द स्पीड and volume of data? How can I understand where I am most exposed to risk? How can I develop innovative products? How can I respond to my customers' demand for more transparency? How can I increase throughput with existing facilities? मतलब हाउ कैन आई, मुझे कब क्या किस चीज़ को कैसे करना है या कितने क्वांटिटी में करना है, ये मुझे कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमें यहाँ हेल्प करता है। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू